everyone. I just want to ask one question to you. Have you ever got confused how to use would and could? If yes, then this is the exact topic we're going to talk over in this video today. So, welcome to our YouTube channel. My name is Anamika and I hope you all are doing good. So, let's just begin the topic now. And now I'm going to explain how to use would and could according to different situations one by one, or I'm going to differentiate these with examples. So let's begin with the topic. Starting off with the first point, which is as a past tense. Would and could, these both can be used as a past tense. And if we are talking particularly about could, then could can be used as the past tense of can, which tells about the ability. मतलब हम would और could दोनों को past tense की तरह यूज कर सकते हैं, और अगर हम could की बात करते हैं तो could को हम can के past tense की तरह यूज करते हैं. और could हमें क्या बताता है? ये हमें बीते हुए समय में किसी की योग्यता के बारे में बताता है कि कोई किसी काम को कर सकता था या नहीं कर सकता था. Let's see the example to have a clear view. So the first example is she could pass the mathematics exam but she chose not to appear for it due to her fear. मतलब वह मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम को पास कर सकती थी, बट उसने क्या चूज़ किया? उसने एग्ज़ाम को ना देने जाना चूज़ किया. क्यों? क्योंकि उसे मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम से फियर था, डर था. यहाँ पर इसकी एबिलिटी क्या बताई जा रही है कि वह एग्ज़ाम को पास कर सकती थी. Where we use could, which is the past tense of can. Okay, now let's see the second example. This is they couldn't lift the car. हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो बीते हुए समय में किसी कार को लिफ्ट करने की, उठाने की कोशिश कर रहे थे, बट वे कार को नहीं उठा सके. तो यहाँ पर हमने यूज़ किया could not, मतलब वह कार को नहीं उठा सके. उनकी एबिलिटी क्या है कि वह जो काम कर रहे थे उस काम को नहीं कर सके. Okay, so that's how we can use could according to past tense. Now, if we are talking about would, then would can be used as the past tense of will, and which tells about a certain thing to happen in future. मतलब अगर हम would की बात करते हैं तो हम would को will के past tense की तरह यूज़ करते हैं, जो हमें क्या बताता है? हमें फ्यूचर में किसी चीज़ के होने की बात करता है. Okay, for example, he said that he would leave his apartment. उसने कहा कि वह अपना अपार्टमेंट छोड़ देगा. बात हमने पास्ट में करी, बट वो चीज़ होगी कब? That will happen in future. Okay, second one is I thought she would complete her work till tomorrow. मतलब मैंने सोचा कि वह अपना काम कल तक पूरा कर लेगी. मैंने सोचा था पास्ट में, बट वो काम कब होगा? जो मैंने सोचा जिस चीज़ के बारे में, वह काम कब होगा? वह होगा फ्यूचर में. ओके, एंड दैट वाज अबाउट वुड एज पास्ट टेंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज फॉर पॉसिबिलिटी. Now could is used to tell about the possible situations, and here it has nothing to do with the ability. Okay, मतलब हम could को यूज़ कर सकते हैं किसी possible situation के बारे में बताने के लिए, जो चीज़ हमें नहीं पता कि वो होगी या नहीं, just imagine कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, वहाँ पर हम could यूज़ करते हैं. For example, he is not coming to the gym nowadays. He could be sick. मतलब आजकल वह जिम नहीं आ रहा है, हो सकता है वह बीमार हो. ओके, हमें नहीं पता कि वह बीमार है या नहीं है. We are just assuming that he could be sick. Okay, we are not sure about it. The second one is it could rain today. मतलब आज बारिश हो सकती है. We are not sure
about it that it will rain, we are just assuming. And if we are thinking to use would to show the possible situations, then we can't use would for possibility. We can't use would to show these possible situations. We only use could to talk about all these possible situation things. Okay, now let's just move on to the next point, which is for imaginary situations. Now, about would, it is used for imaginary situations. Now, what are imaginary situations? These are the situations which are almost impossible or hard to possible. These are imaginary situations. मतलब would को हम इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं. इमेजिनरी सिचुएशंस वो होती हैं जो या तो इम्पॉसिबल हों या तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हों पॉसिबल होने के लिए. उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी सिचुएशंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड अ मैजिकल स्टिक आई वुड आस्क इट फॉर अ टन्स ऑफ फूड टू ईट. मतलब अगर मेरे पास एक जादुई छड़ी होती तो मैं उसको टन्स ऑफ फूड के लिए कहती. मतलब अब मैजिकल स्टिक तो पॉसिबल है नहीं है, ठीक है. सो वी कैन ओनली इमेजिन इट, वी कैन ओनली जस्ट थिंक अबाउट इट. इट इज़ नॉट इन रियलिटी. So we used would here. Now the second example is I wish I would pass the exam with the highest marks. मतलब मैं विश करता हूँ कि मैं एग्ज़ाम को हाईएस्ट मार्क के साथ पास करूँ. अब ये ऐसी सिचुएशन है जो इट कैन बी हार्ड टू पॉसिबल. इम्पॉसिबल तो नहीं है बट ये मुश्किल है पॉसिबल होना. दैट्स वाई आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि आई एम विशिंग अबाउट इट कि मैं अच्छे नंबर से और हाईएस्ट मार्क्स से पास करूँ एग्ज़ाम को. ओके, नाउ अबाउट could, it can also be used for imaginary situations, but usually we use would to talk about all these imaginary situations. Okay, now moving on to the next point, which is for polite expressions. पोलाइट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा विनम्र वाक्य होते हैं उन्हें हम पोलाइट एक्सप्रेशंस बोलते हैं. ओके, अब पोलाइट एक्सप्रेशंस में क्या आ जाता है? हम किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी से परमिशन ले रहे हैं. दीज ऑल आर पोलाइट एक्सप्रेशंस. Now, starting off with first suggestions. About could is used for giving suggestions. हम could को किसी को कोई सलाह देने के लिए यूज़ करते हैं. For example, we could go for a long drive. मतलब अगर आप किसी के साथ कहीं जाने का सोच रहे हैं, ठीक है, और वो आपको पूछ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, तो आप अगर सजेस्ट करना चाहते हैं तो यू वुड से दैट वी कुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. मतलब हम लॉन्ग ड्राइव के लिए जा सकते हैं. इट्स जस्ट अ सजेशन. आप उन्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट फोर्सिंग देम टू गो, यू आर जस्ट सजेस्टिंग देम. आप उन्हें सिर्फ सलाह दे रहे हैं. ओके, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज यू शुड गो फॉर स्विमिंग दिस वीकेंड. If someone is asking you that what should I do in this weekend, then you can say that you could go for swimming this weekend, and this is just a suggestion. मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि मैं इस वीकेंड क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि तुम स्विमिंग के लिए जा सकते हो इस वीकेंड. और ये एक सलाह है जो आप दे रहे हैं, बाकी ये उनकी मर्ज़ी, वो जाए ना जाए. Okay, now the third example is you could try my new dress if you want to. So if your sister, she is saying that she wants to go outside but she has no new dress, तो आप उसे कह सकते हैं कि तुम चाहो तो तुम मेरी ड्रेस ट्राई कर सकती हो. You could try my new dress if you want to. Okay, now would, if we are talking about this, then we can't use would for giving suggestions. मतलब हम would को suggestions के लिए use नहीं कर सकते हैं. Now next polite expression is for offers. About would, we use would to offer something to someone.
मतलब ऑफ़र करना मतलब हमारे पास कुछ ऐसा है या फिर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए हम किसी को पूछ रहे हैं कि अ, वो ऐसा करना चाहेंगे, वो कुछ लेना चाहेंगे या फिर वो हमें जॉइन करना चाहेंगे, समथिंग लाइक दैट. ओके, नाउ जस्ट मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज वुड यू लाइक टू कम विद अस. मतलब हम कहीं घूमने जा रहे हैं और हमारे सामने हमारा कोई फ्रेंड या हमारा कोई रिलेटिव है. सो हम उसको पूछते हैं कि क्या वे हमारे साथ आना चाहेंगे. ये उनकी मर्ज़ी है वे आना चाहें या ना आएँ, बट जो हम कर रहे हैं हम उसमें उनको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं. सो वी आर ऑफरिंग देम इफ़ दे वांट दे कैन जॉइन अस. ओके, सो हम बोल रहे हैं वुड यू लाइक टू कम विद अस, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे. Okay, now the second example is would you like me to do your laundry. Imagine that your sister is working too hard and she has no time to do laundry and you want to help her. So आप बोलेंगे that would you like me to do your laundry, क्योंकि आपके सिस्टर अपने काम की वजह से अपना लॉन्ड्री अपने कपड़े नहीं धुल पा रही है, तो आप उसकी हेल्प करने के लिए आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम चाहोगी मैं तुम्हारे कपड़े धुल दूँ. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर लंच. मतलब आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, आप लंच करने जा रहे हैं एंड आप उसको पूछ रहे हैं कि वह आपके साथ लंच करना चाहेगा. अबाउट कुड, देन कुड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑफर समथिंग टू समवन. ओके, हम कुड को ऑफर के लिए नहीं यूज़ कर सकते. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. Now but could we make request to someone by using could. हम could को किसी से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल could you bring me some water please. अगर आपको किसी से पानी मांगना है और आप उससे बहुत ही ज़्यादा विनम्र तरीके से बोलना चाहते हैं कि वह आपको पानी ला दे, तो आप क्या कहेंगे could you bring me some water please. Okay, now the second one is could you drop me at the bus stop. आप किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं बहुत पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से, तो आप उसे बोलेंगे could you drop me at the bus stop. क्या आप मुझे बस स्टॉप पर छोड़ देंगे, बस स्टॉप तक ले जाएंगे. The third one is could you go check the emails for me. क्या तुम जाओगे और मेरे लिए ईमेल्स चेक करोगे प्लीज़. तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं could you go and check the emails for me. So about would can also be used for making a request. मतलब हम would को भी use कर सकते हैं request के लिए, but the condition is would cannot be directly used for requests. ओके, मतलब would को हम डायरेक्टली would यूज़ नहीं कर सकते रिक्वेस्ट के लिए. हम एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं जिसको हम रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल would you mind. ओके, विच इज़ द एग्जाम्पल would you mind making a tea for me. क्या तुम मेरे लिए एक टी बना दोगी. We are asking someone, we are requesting someone that would you mind making a tea for me. Okay, now the second example is would you mind me asking you out. क्या मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए पूछ सकता हूँ. यहाँ पर भी हमने इससे रिक्वेस्ट करी है, बट we didn't use would directly. We used would you mind, which is a fixed sentence. Okay, our next polite expression is for someone's permission. मतलब किसी से इजाज़त लेने के लिए. तो about could is used to ask for someone's permission. मतलब हम could को किसी की permission लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं. For example, could I borrow your notebook for one day. मतलब अगर हमें किसी की नोटबुक लेनी है तो हम उसकी परमिशन लेनी चाहते हैं कि क्या हम उसकी नोटबुक को एक दिन के लिए उधार ले सकते हैं, तो हम बोलेंगे could I borrow your notebook for one day. Okay, we are asking for permission. Now the second one is could I take a leave in this week. अगर हमें किसी हफ्ते में एक छुट्टी चाहिए and we are asking our authorities कि क्या हम उस हफ्ते में एक लीव ले सकते हैं, so we are asking for their permission and we are using could.
could I take a leave in this week? क्या हम इस हफ्ते में एक छुट्टी ले सकते हैं? Now this was all about permission and we used could. What about would? Would is also used for asking someone's permission. Would को भी हम किसी की permission लेने के लिए use कर सकते हैं. For example, would it be okay if I take your pen for an hour? मतलब क्या मैं तुम्हारी पेन एक घंटे के लिए ले सकता हूँ? But if you notice something, then this is would it be okay? We didn't use would directly. हमने would को directly use नहीं किया. हमने एक sentence use किया है which is fixed sentence and that is would it be okay? Okay? Now the second one is would it be fine if I use your towel? क्या मैं तुम्हारी towel use कर सकता हूँ? I'm asking for your permission and I'm saying that would it be okay, would it be fine if I use your towel? Okay, now the next one is, oh sorry, there is no next. I hope you got the things, but if you didn't, then please ask me in the comment box. I would be happy to help you. And that was all for today. We'll meet you soon. Till then, bye bye, take care.